तेरा लेग सीधे उड़ के तने मेरे पैर जल चुके हैं। नए फोन की मुंह दिखाई। Hello everyone and welcome to a beautiful Tuesday when I am traveling back home. A lot of you requested for a घर का vlog and here it goes. Hello. My God, कितना अच्छे से लिखा है। I want to go back to school, please. यही पढ़ लेती हूँ मैं। MBBS तो नहीं हो रही भाई। सारी ये तो मैथ्स की है। नहीं, इंग्लिश की और अच्छा ये वर्कबुक है। वैसे तो मैंने सब की थी, अब पता नहीं वाह, मेरे को पढ़नी है। वो आपको क्यों पढ़नी है? पढ़नी है मेरे को पक्का पता है। हमारे लिए बचा के, मेरे लिए बचा के रखेंगे। उनका तो हो गया, तो मेरे लिए बचा के रखेंगे। मेरे ख्याल से 10 साल नहीं, 10 से भी ज़्यादा साल, 10 साल पुरानी। 10 से भी ज़्यादा साल पुरानी मैं यूज़ करूँगी। तब हो जाएगी वो 10 से ज़्यादा साल पुरानी। तो मम्मी भी तो 10 साल पुरानी हो जाएगी, वो भी तो यूज कर रही है। लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कि ब्लॉग आना चाहिए जिसमें पीयू। क्योंकि मेरा भी थोड़ा वो है। क्या है? कुछ है। क्या है? ऑरा, और फैन फॉलोइंग। यस, 2 प्याज काट। छोटी छोटी ले लो, एक छोटी ले लो। सो मैं एकदम मिडल में है, मैं कैसे निकालूंगी? झाड़ू झाड़ू से नहीं, हाँ यहाँ से निकल आएगा, यहाँ से घुसो। अरे ये बंद है। अरे निकल आएगा, घुसो तो सही। इसलिए लोग कहते हैं कि पीयू को व्लॉग में लाओ। काम देख रहे हैं ना। Here you go। सब्जियों का दोस्त। वेयर डू आई गो? हियर? सब्जियों का दोस्त। हियर वेयर? कहाँ जा रही हो तुम डियर? वाई डियर? मैगी चढ़ गई। क्या चढ़ गई? मैगी। तो क्या छील रहे हो? कैसे छील रहे हो? मुझे तो अभी समझ नहीं छील रही हो ना, रुक जा। किसकी वीडियो? आया। अरे वही। सबर कर। क्या छील चुका है? क्या हुई? छील रही हूँ भाई, मैंने निकाल लो शायद। लोगों को दिखा दूँ रियलिटी। अरे नहीं। This vlog has honestly turned out to be very chaotic and as we proceed in it you'll definitely get to know. By the way, we were just making a Rajasthani meal jiska short I've already uploaded, so you can definitely go check it out. What exactly have I made, and it turned out very very tasty. Honestly, I didn't want this video to go into this direction, but I definitely want to talk about this thing that since the past 3 days I did not feel like doing anything, like literally nothing, and I couldn't understand what was the reason behind it. This is while I'm editing this video, which is after I've come back from home to my hostel. You know, few of those days when you end up feeling sad and lonely and very useless for no real reason that you can find out. So I was having a few of those days. I would give a little bit of credit to my work stress, to my padhai stress, a little bit to social media hate also. For example, let's take the example of this video. I was filming for Gulabi Sari. I was getting ready and I shot this video. So honestly, while filming, while editing, and even while I was watching this video, I did not find anything bad per se that could potentially piss anybody. I honestly wore this nut upside down, जो मुझे वीडियो डालने के बाद पता चला. This was an technical error from my side, but I honestly didn't know. But even this error, I don't think it should have pissed anyone. But then apart from this, I read comments about how bad the drape is looking and you're looking very overweight and etc. And honestly, had it not been that day, I would have not been affected a lot. But honestly, that particular day I was already very sad or pissed, whatever you'd like to call. I eventually took down the video because I just didn't want that sort of hate to bother me. At least that day I wanted to be in peace. Now, trying to introspect what went wrong with the video, I actually took a few unbiased opinions of people, my friends, that please tell me what is wrong with this video. And honestly, I couldn't find anything that could potentially piss off anyone or could
tell anyone to spread hate or could potentially motivate them to do the same. Honestly, I was feeling good, I was feeling happy, I was feeling beautiful about how I was looking, but then eventually after reading the comments my feeling changed drastically. And this is where everything went wrong, because I started judging myself and how I look and how I perceive myself based on what people are telling me to do. हेलो माइक किधर है? हेलो एवरीबॉडी, सो आई एम एट होम. देख ही लिया होगा सबने. एंड आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन. आज तो नौमी है, तो वी जस्ट डिड अ बिट ऑफ पूजा सुबह में एंड वी हैड आ प्रसाद एंड एवरीथिंग. उसके बाद मैंने अभी बस शूट फिनिश किया है. दिस वाज द फर्स्ट शूट और ये बहुत ही इम्पल्सिव शूट था बिकॉज मुझे गुलाबी साड़ी इतने टाइम से करना था. ओफ, मैं क्या ही बताऊँ. तो हाँ, हम गुलाबी साड़ी हमने कर लिया है. एंड अभी का सिनेरियो ये है कि आई हैव टू फिनिश एडिट. तो मैं सोच रही हूँ अभी वो कर लेती हूँ. टू डू लिस्ट भी बना लेती हूँ बिकॉज रात को तो मैं बहुत ही ऐसे ही सो गई थी, तो आई डेंट मेक अ टू डू लिस्ट फॉर माई सेल्फ. तो वो भी बना लेते हैं. आज वेडनेसडे है, आज शाम को योगा भी है, तो योगा भी करना है. सो या घर पे जब मैं आती हूँ तो योगा का स्केड्यूल थोड़ा सा बिगड़ जाता है, बट मैं इस बार ट्राई करूँगी कि मैं रोज़ कर लूँ ताकि मेरा स्केड्यूल चेंज ना हो. एंड यस, क्लीन हो गए हैं अब हम. बस लेट मी मेक अ टू डू लिस्ट एंड डू सम वर्क. एंड इफ़ यू हैवंट वॉच्ड गुलाबी साड़ी, प्लीज़ जाके देखो. आई लव हाउ इट हैज़ टर्न्ड आउट. ओके, But you see how the universe works. I was sad and yesterday I was watching Diljit Dosanjh का podcast where he said that ऐसे टाइम पे आपके टेस्ट्स होते रहते हैं. आपकी लाइफ में ऐसे अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते रहेंगे एंड यू डोंट हैव टू टेक दीज थिंग्स पर्सनली. यू डोंट हैव टू फील कि वो इंसान या कोई भी इंसान फॉर दैट मैटर, इफ़ ही और शी इज़ डूइंग समथिंग टू यू, इट्स नॉट एनीथिंग पर्सनल. इट्स गॉड टेस्टिंग you. It's God seeing that how are you going to react in that particular situation. Are you actually immune, or do you still have a lot of work to do on yourself? Which I clearly realized that no, I have a lot of work remaining to do on myself, which was a good realization because I know now where to work. And probably this video is also your sign that the universe is also telling you to take the lesson that I took a couple days back. I don't know. अरे इनको दिखाए तो पहले तो आप लड़ती कैसे हो? ऐसे लड़ती हो ना? लड़ती किसी से ऐसे बॉडी में शिफ्ट करो आगे पीछे. हाँ, अरे हाथ का हिला रही हो तुमने. हाँ, आपने ऐसे डरना नहीं है. ऐसे पास रहो. किधर ऐसे लड़ते हैं ना, ऐसे. हाँ, बस ये. ये मैं अच्छी नहीं लग रही. बहुत बुरी लग रही. मैं नहीं कर रही. 5 minutes later. रेडी, 1 2 3 स्टार्ट. मेरी भी ले लियो सामान. मम्मी भी तो चला गया गाइस. रुक क्यों जाती है भाई? रुक क्यों जाती है? आपको डिसऑर्डर नहीं, दूसरा स्टेप. क्या है भाई? नहीं करना तो बता दो, मैं जा रही हूँ यहाँ से. क्या हो गया? कोई हंसने की बात तो हुई नहीं. पर भाई आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ. ये जो हमने ऐसे वाली वीडियोस बनाए, मेरे सिर में दर्द हो गया है करते करते. बट द गुड न्यूज़ और द बैड न्यूज़, जो भी तुम्हें कहना है कहो. मैं आज अपना फ़ोन दिखाने गई थी बिकॉज उसके कैमरे में कुछ थोड़ा सा एक ऐसे डॉट टाइप्स बन के आ रहा है विच इज़ वेरी स्मॉल, बट बिकॉज आई शूट वीडियोज़ दिस ऑफन तो वो मुझे दिख रहा है एंड वो वीडियोज़ में भी आता है. एंड इट्स लाइक अ वेरी स्मॉल डॉट, बट वो 0.5x वाले कैमरा में है बस. सो आज मैं गई दिखाने. आई वेंट टू अ लोकल वेंडर क्योंकि मेरी जो वारंटी है एप्पल की वो तो एक्सपायर हो चुकी है. बट ही टोल्ड मी
कि लेंस का कुछ प्रॉब्लम है, तो द एंटायर कैमरा विल हैव टू बी रिप्लेस्ड। और उस पर जो लोकल वेंडर था उन्होंने ही ऐसे 5-6 हज़ार का खर्चा बताया। सो देन आई केम बैक, आई थॉट कि छोटा सा ही है एंड स्टफ, बट देन आई टोल्ड पापा, सो ही सेड दैट ओके तू मेरा फ़ोन ले ले, बिकॉज पापा हैज़ iPhone 15 Pro Max। तो ही वॉज़ लाइक कि मुझे तो एनी वे कोई काम का नहीं है, एंड ही बॉट द फ़ोन solely because उनका जो पुराना फ़ोन था that wasn't in a very good condition। तो he said कि I'll use your phone because मुझे मॉडल से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, plus he doesn't use his camera a lot। So we are thinking of exchanging our phones। पापा ने कहा कि अब ये फ़ोन लेके 5 साल चलाना है एटलीस्ट, which doesn't happen क्योंकि iPhone अपना कैमरा जैसे ही नया मॉडल आता है पिछले वाले मॉडल का कैमरा वो लोग ख़राब कर देते हैं। कुछ ना कुछ फॉल्ट आ ही जाता है। मेरे साथ पिछले फ़ोन के साथ भी यही हुआ था, उसका कैमरा तो विद इन वारंटी मैंने चेंज करवाया था क्योंकि इट वाज अ टेरिबल कैमरा, मतलब उनको तो कुछ मैन्युफैक्चर डिफेक्ट करके उन्होंने मुझे दिया था। बट एनीवेज एंड एनी हाउ दैट्स व्हाट यू आर प्लानिंग, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ क्योंकि दोनों फ़ोन्स का बैकअप लेना, उनको डेटा ट्रांसफ़र करना, इट्स गोइंग टू बी अ लॉट। बट पापा सेड कि अभी कर लो बिकॉज देन फिर मैं इतने ज़्यादा लंबे टाइम के लिए घर आती नहीं हूँ। सो या आई एम प्लानिंग टू डू दैट। मैं बहुत थक गई हूँ आज, बट ये करके सोएंगे। The next day. Good morning. I'm practicing a classical piece, a semi-classical piece, क्योंकि मुझे वो करना है। I have to make a video and it's been such a long while after which मैं classical या semi-classical वापस कर रही हूँ। सांस चढ़ी है मेरी 2-3 बार प्रैक्टिस करके। So yeah, let's do it. Hi, I just shot the semi-classical video। इतने ज़्यादा पसीने आ रहे हैं मुझे, एंड बाहर मतलब मुझे नेचुरल लाइट में करना था एंड धूप इतनी तेज़ थी, और ऑब्वियसली नंगे पैर करना था बिकॉज इट्स सेमी-क्लासिकल। माय गॉड, मतलब इतना ज़्यादा गर्म फ्लोर था, बट फाइनली हो गया है। अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ, फिर मैं बाहर जाके फ़ोटोज़ खींचूँगी क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग गई। तो आप जस्ट कम बैक, उसके बाद फिर जाते हैं वापस। ललकारी नाल नो मेरा लेगेसी ते आउण कीर्तन विच वज्जिया नी पट्टू फिरदे। भाई मैं बार बार लिरिक्स याद करती हूँ और मैं बार बार भूल जाती हूँ, बट on another note, I have sung this song today and I have posted it on my Instagram and my YouTube। If you haven't checked it out, you should, क्योंकि मैंने बहुत टाइम के बाद गाना गाया है। Oh my god, it's very अजीब। सेकेंडली मैं इसलिए भी नहीं गाती थी बिकॉज आई मीन आई हैव अ ह्यूज ऑडियंस, तो मैं कभी कभार अपने प्राइवेट छोटे वाले अकाउंट्स पे इंस्टाग्राम पे डालती रहती हूँ गाना गा गा के, बट लाइक बड़े अकाउंट पे आई इसलिए डोंट वांट, क्योंकि देन अगेन आई एम नॉट अ प्रो एंड आई गेट अ लॉट ऑफ विच आई डोंट वांट टू हियर, सो मैं नहीं डालती थी। बट सूनर और लेटर नाउ आई हैव कम टू रियलाइज कि मेरी आवाज़ इज़ मोर मेंट फॉर सॉन्ग्स लाइक दीज, फॉर पंजाबी सॉन्ग्स, फॉर सॉन्ग्स जिनमें थोड़ा सा बेस ज़्यादा चाहिए होता है आवाज़ में, क्योंकि मेरी आवाज़ स्लाइटली इट्स नॉट वेरी penny, you know, I don't have a very high pitched voice, so I can't sing songs like एक नदी से मैंने पूछा, that I can't do। I mean I can do it, but I can't do it as good as the singer has done it। I mean of course I can't reach that level, but I mean you get what I'm saying। So in songs में I think my voice fits them well, so I thought कि आज तो भाई कर ही देते हैं। आज सुबह से मैं और मम्मी इस गाने में बहुत ज़्यादा जैम कर रहे थे, तो मैंने कहा लेट्स डू दिस। आई रिकॉर्डेड इट, एक लाइक आई टुक लाइक 2 अटैम्प्ट्स में जैसा आया फिर मैंने रिकॉर्ड किया, और फिर उसके बाद उसका वीडियो बनाया ये ब्लैक कलर के सूट में तैयार होके। आई कुडंट शूट इट एज अ व्लॉग, आई एम रियली सॉरी यू गाइज, और बहुत जल्दी कर रही थी मैं, और तब से मैं सिर्फ पड़ी हुई हूँ।
ऐसी सेम गार्लिक ब्रेड हमारे कोटा वाले हॉस्टल में बनती थी। ड्रामा क्लब और मैड हाउस। ये व्हाट्सएप के ज़माने के बच्चे हैं भैया। हम तो फ़ोन, हमारे पास तो नंबर होते ही नहीं थे फ़ोन किसी के पास। हम मम्मियों के नंबरों पे फ़ोन करते थे। आंटी वो है, बात करवा दीजिए, होमवर्क लेना है। अब मैं सबसे डिफ़िकल्ट काम करने जा रही हूँ, विच इज़ मैं अपना फ़ोन पूरी तरह से रीसेट करके इस पापा के फ़ोन का डेटा अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक। मुझे पता है मेरे अगले 4 घंटे बहुत ही हेक्टिक बीतेंगे, बट लेट्स डू इट। इट्स अ न्यू फ़ोन गाइज, इट्स अ न्यू फ़ोन। हेलो। तो पहले तो नए फ़ोन की मुंह दिखाई, ये हमारा नया फ़ोन, बट अंदर से पूरा पुराना ही है। सेम वॉलपेपर, सेम सब कुछ। आज घर पे गेस्ट आ गए थे गार्लिक ब्रेड खाने के बाद, तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। एंड यस, आज बस इतना ही हुआ। आई एम रैपिंग अप दिस व्लॉग नाउ। मुझे नहीं पता ये कैसा बना है, बहुत ही क्योटिक बना है, आई एम श्योर। लेट्स सी, एडिटिंग में हालत ख़राब होने वाली है इसकी। बट येस, कल मैं वापस जा रही हूँ हॉस्टल, सो अगेन मिक्स्ड फीलिंग्स, बट ओके। कल से वी आर गोइंग टू गेट बैक टू दी हसल, बट अभी भी बहुत काम है। कल ये जो मेरे माइक की कॉर्ड है, जो पहले मैं अपने फ़ोन से अटैच कर लेती थी, अब मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ना दिस फ़ोन हैज़ अ सी टाइप। ये एप्पल वाले पता नहीं क्यों परेशान करते रहता है पूरा टाइम। तो अब इसके लिए आई हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। तो कल आई नीड टू buy an adapter for this, and yes, यही था हमारा घर का व्लॉग। आई होप यू एन्जॉयड इट। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि घर का व्लॉग चाहिए, तो मैंने बनाया। आई होप ये अच्छा बना हो एंड यू लाइक्ड इट। ओके बाय।